everyone. Welcome to another episode of Saves 9 Edu podcast, where we bring you with insightful and inspiring conversation with experts who are trying to make change in healthcare industry. Today we're going to talk about a very interesting topic called egg freezing treatment in women. And to shed light on this topic, we have with us a very skilled gynecologist, Dr. Namrata Tendulkar. She's going to talk in depth about egg freezing treatment options in women and answer all the who's, whens and whys about it. I'm really interested to start this conversation. But before we begin, please like, share and subscribe on YouTube channel. Welcome Dr. Namrata. Thank you, Richa. Thank you. So first I would like you to tell our audience something about yourself. Sure. So, hello everyone. My name is Dr. Namrata Ravindra Jaya Tendulkar. I've been practicing obstetrics and gynecology since the last 10 years, and currently since the past 3-4 years I've been working as an IVF specialist in Mumbai. Okay. So, a lot of after seeing a lot of patients, awareness and all the different cases, I feel that what we are doing today is very important because I feel this is the need of the time rather than the hour. I agree. So, First, can you explain what is egg freezing? sure. So, egg freezing is one of, also called as a way of fertility preservation, right? So, it gives an individual एक चांस कि वो अपनी फर्टिलिटी को कंसिडर कर सकते हैं कि एट विल दे कैन चूज टू कंसीव एट विल इन फ्यूचर फॉर लेटर स्टेज रिक्वायर्ड. Okay. So as we all know, जब when we are born, we are born with certain number of fixed eggs. Right. So we often hear people telling us कि biological clock tick हो रहा है, जल्दी है. So that actually is the reality. So जैसे जैसे टाइम जाता है, our egg reserve, the number of eggs that we are born with, it keeps on decreasing. Okay. So what starts with millions at birth, by the time you hit your puberty, it is somewhere in lakhs, Okay. 3 to 4 lakhs. And then eventually, by 30, 35, after 40, there's a gradual decline. After 30, 35, तो बहुत ज़्यादा faster decline हो रहा है. So, that is the reason why there was always this thing कि time पे शादी करो. हाँ. तो वो शादी Time के पे लिए नहीं बच्चे था. कर लो. हाँ, that was the idea was this Right. कि अच्छी fertility potential आपकी initial ages में रहती है. But considering the times that we are living in, women have, I think everyone in general, there is higher education that we need to pursue. फिर career रहता है, career में you have to have some certain stability to reach. So it's not like, and the lifestyle that we are living, then there are maybe sometimes you are unable to find the right partner. So there are different ways, reasons, a lot of reasons why more and more younger generation, I would say, they are getting married at a later stage. तो उस टाइम पर अगर आपने किया like 30, 35 maybe or even 40 for that matter, so आपको तब options अपनी natural चाह से जो खुद की प्रेगनेंसी होनी है, तो उसके फिर chances बहुत ही कम होते हैं, very less. So that solution to that problem is called as egg freezing. Okay. So this is a wonderful technology, I would say, that provides a woman autonomy over her reproductive rights. Like she gets to choose at what age she wants to conceive, and then once everything stabilizes, be it career हो गया, job हो गया, partner मिल गया, whenever she is ready, both mentally and financially for that matter, she can choose to conceive then. So that biological clock can actually stop ticking when we talk about egg freezing. So what is the proper age? See, ideally I would say plan करना है आपको. You have thought कि हाँ मुझे eventually I need a baby, So I would say the earlier the better, right? Okay. So the reason being, as I told you earlier, that the egg count keeps on dropping.
तो हमारे सक्सेस रेट, प्रोग्नोसिस, इन सब पे डिपेंड करता है, राइट? सो द एज एट विच यू चूज टू मेक दैट डिसीजन, दैट इज गोइंग टू डिसाइड द सक्सेस रेट ऑफ योर फ्यूचर प्रेगनेंसीज व्हेन यू ऑप्ट फॉर एग फ्रीजिंग. सो द अर्लियर द बेटर, आई वुड से. Recommended, personally I would recommend less than 35, but that doesn't mean I still have patients who have married at 37 38 years and they come to me, madam 2 महीने हुए शादी को. In fact a recent couple at 39, 15 days prior शादी हुई है, अभी तक मैरिज रजिस्ट्रेशन भी नहीं आया है. तो ऑफ कोर्स दे डू कम कि हमें करना है, कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं, बट अगर आपको मैक्सिमम फ़ायदा उठाना है उसका, सो इट्स बेटर दैट यू डू इट अर्लियर. So if you want to freeze your egg, you should freeze 25 to 35 is ideal age that I would recommend. Yeah, electively जो हम कह रहे करना है, so that would be an ideal age I would recommend. But still, the earlier the better. Having said so. Great. Yeah. So with this egg freezing options, like suppose a lady has frozen her eggs at around 25 age and she chooses to use that egg at maybe 35. So what is the success rate? Okay. So I think that's a very interesting question. So what people don't realize is कि इसका importance क्या आ जाता है कि आपका there is something called as aging that happens जो normally हमको दिखता है कि we were at 20-25 years we look different, and at 30-35 40 we look different. But what people don't see is that there is an ovarian aging happening as well, and that is happening at a very faster rate. Okay. So if you preserve your eggs at 25 years of age, आप 35 पे कंसीव करोगे, प्लान करोगे उस एग्स को निकाल के यूज़ करने का. So the beauty of egg freezing is कि you are 35 at that age, आपका बट जो eggs हम use करेंगे that will be 25. So it's literally like a time capsule thing that you know कि आप उसी टाइम के eggs कर सकते हैं. So I think that's the beauty behind it. So you may do it at whatever age you can use it, but your eggs won't be or at that age, at your chronological age rather, it would be at the age वो उसी age में रहेंगे. तो टू आंसर योर क्वेश्चन, सक्सेस रेट अगेन डिपेंड करता है सक्सेसफुल प्रेगनेंसी कितनी होगी. इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट एज यू डू, यू इनिशिएट द ट्रीटमेंट. आपका उस टाइम पे ओवेरियन रिजर्व कितना था और एग कलेक्शन के बाद हमें मेच्योर एग्स कितने मिले हैं आइडियली. सो इट्स ऑल अबाउट द नंबर गेम योर, राइट? So ideally I would target having somewhere around at least 10 to 20 eggs, you know. So when you have 10 to 20 eggs, तो उसका post thawing जब हम निकाल के है, so almost 90% of those eggs, 90 to 95% eggs हम यूज़ कर सकते हैं fertilization के लिए, and successful fertilization उनमें से 50 to 60% of eggs. एंड अगर आपकी इक्वालिटी अच्छी हो, यंगर एज में किया है, देन इवन अप टू 70-80% एम्ब्रियोज बनेंगे. सो इफ यू हैव अ गुड नंबर टू बिगिन विद, से समवेयर अराउंड 10 to 15 eggs, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपके 4 से 5 या मैक्सिमम 6 एम्ब्रियोज रेडी होंगे. दैट्स व्हाई द नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट. तो अगर आपने सही एज पे कराया, आपके नंबर्स भी सही मिलेंगे. तो टू हैव अ कट ऑफ एटलीस्ट आई वुड से कि जितने एग्स है उसके 50-60% हमारे एम्ब्रियोज बनते हैं, यू नो. सो इसीलिए द होल थिंग, द अर्लियर द बेटर, सो दैट वी हैव गुड एम्ब्रियोज इन द एंड, यू नो. एंड इम्प्लांटेशन रेट्स बढ़ जाते हैं, क्लिनिकल प्रेगनेंसी रेट्स बढ़ जाती है ऐसे. एंड इन केसेस वेयर चलो मेरे पास कोई 32 की आई, और मे बी एट 30 समवन हैज़ अ रियली लेस रिजर्व, यू नो, एंड व्हेन वी टू हम एक कलेक्शन करते हैं और हमें 5-6 ही मिले हैं, सो डज दैट मीन कि वो नहीं कर सकते एक फ्रीजिंग? बिल्कुल कर सकते हैं. उसका मतलब है हम उन्हें एक और सेटिंग बोलते हैं, टू रिपीट अनदर साइकिल टू मेक मोर एग्स एंड सीड. सो जो एक टाइम पे 12 नहीं आए हैं वो हम 2 बार करके उतना नंबर अचीव कर सकते हैं. सो वी हैव टू बी रियलिस्टिक जब हम एक फ्रीजिंग की बात भी कर रहे हैं. सो इट्स नेवर लाइक ओके 12 एग्स मीन्स 12 एम्ब्रियोज, ये ऐसा नहीं बनता है. So yeah, of course it's going to come to at least 50-60%, maybe if everything is good by 70%.
तो ये रियलिटी पता होनी चाहिए, यू नो. इवन व्हेन आई स्पीक एंड आई एनकरेज एग फ्रीजिंग, आई डोंट पेंट अ वेरी रोजी पिक्चर सेइंग कि यू नो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उसमें से फिर उतने एम्ब्रियोज बनेंगे, उसमें से नॉट ऑल एम्ब्रियोज माइट इम्प्लांट. ये बॉडी में नेचुरली भी वही कर सकता है, बॉडी में भी तो ये होता ही है. सो इट्स नॉट समथिंग डिफरेंट. So that's why the earlier the better is what I always say. In case of less eggs, less numbers to begin with, maybe repeat cycle, you know, repeat the same stimulation cycle is what I would say. Yeah. So the babies born out of frozen eggs, they are like equally healthy. Of like course. the fresh eggs. Yeah. Maybe the chances, I don't know. The I eggs very well normally- understand. So see, one of the very common things that people have, I think, बहुत ही कॉमन मिथ है इन जनरल कि ये बहुत अननेचुरल है. IVF इज़ अननेचुरल, बेबी कुछ अलग होते हैं. बट सिंस द फर्स्ट IVF बेबी इन 1978, तब से लेके अब तक IVF के बेबीज़ आ गए हैं. All the studies have shown that the treatment so far has been completely established. तो उसमें कोई वो नहीं है. What we are trying to do here, जो बॉडी में नेचुरली आपके एग्स और स्पर्म्स नहीं मिल पा रहे, हम उसे बस मौका दे रहे हैं बाहर मिलाने का. दैट्स व्हाट वी आर डूइंग, एंड दैट इज़ व्हाई वॉट एवर द रिस्क इज़ नॉट इंक्रीज्ड, बी इट योर जेनेटिक एनॉमलीज हो या कोई भी नियोनेटल आउटकम्स हो, इट इज़ द सेम एज इन नेचुरल. जो आपका नेचुरल में जो चांस है वही होता है. सो देयर इज़ नो इंक्रीज्ड रिस्क फॉर एनी जेनेटिक एबनॉर्मैलिटी और any other difference in the outcome of the babies per se. Okay. So once we freeze the eggs, Yeah. like, how long can it be frozen? See, आपको जब प्लान करना है pregnancy, eventually when you can, so the technology that we have, it's pretty much established and standardized rather. So it's been more than 10 plus years that egg freezing per se that we are doing, you know. Okay. What initially started for cancer patients, now that we are doing for social reasons as well, you know, Right. for other. तो ये इतना एस्टैब्लिश हो चुका है कि हम इसको एग्स को निकाल कर वी स्टोर इट इन क्रायो प्रोटेक्टिंग एजेंट्स इन योर क्रायोलॉग्स. इसको हम लोग लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करते हैं अराउंड से -200 डिग्रीज, एंड ये रहता है फॉर indefinite years you could store it. Okay. So because of this advanced technology of, you know, storage polo and the advent of cryoprotectants and all this cryofreezing techniques and all, उसकी quality change नहीं होती है. So what we are doing is we are trying to lock that embryo at that eggs for that matter, eggs or embryos at that particular stage. तो ये आगे grow नहीं करता है, उसको वैसे ही freeze करके उसी stage पे रखता है. So it doesn't grow, it doesn't degrade, कुछ भी नहीं होता है. तो when you use it eventually, whenever, तो उतना उसी आपको उसी quality में मिलेगा, you know. तो to answer your question, the quality does not of course degrade नहीं होती है. एंड ऑफ कोर्स पोस्ट ट्राइवल रेट्स में भी 12-15 है. आजकल इतने अच्छे हो गए टेक्निक्स, जब हम थॉ करते हैं, डिफ्रीज करते हैं तो 12 में से ऑलमोस्ट 13 तो हो ही 12 में से ऑलमोस्ट 11-12 तो मिल ही जाते हैं. इनिशियली इतना नहीं था, बट अब ये हो जाता है. सो आई थिंक बिकॉज ऑफ दी स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर्स उनकी क्वालिटी को कुछ होता नहीं है लॉन्ग टर्म. So like what are the exact steps, like how do you proceed? हाँ, Like so if a woman comes to, is there any, should she take some precautions, yeah. any steps? So just to simplify, there are basically 4 steps that we do for any like egg freezing per se. So the very first step is your hormonal injections that we give. So that is, we call that as ovarian stimulation. So we give hormones to make sure that your eggs are increasing and the size of it is increased, and we want to stimulate all the eggs. That is the first step. The second step is called as egg retrieval in medical terms, और simple जो मैं बोलो तो egg collection, where we remove those eggs from the body. ये दो. आखिरी के 2 steps होते हैं egg storage, freezing होता है पहले करके, and then the last part is the storage. The first 2 parts is where you are involved, where you have to come to the hospital and take those injections for 8 to 10 days ऊपर, like maximum I would say, and maybe around 12th 13th day we do the egg collection and then you're free to go.
So egg collection also has become pretty standardized these days. Painless है relatively, कुछ ज़्यादा तकलीफ नहीं होता है. No overnight hospital stay is required. So you come at 9 o'clock, you can actually leave by 3-4. So it's a daycare process, you know. और उसके बाद कोई अलग से प्रिकॉशंस लेने नहीं पड़ते हैं कि मुझे 10 दिन हॉस्पिटल मतलब ऑफिस से छुट्टी लेनी है या रेस्ट करना है, ऐसा कुछ नहीं है. मैक्सिमम 1 to 2 days थोड़ा बहुत यू नो हार्मोन सेटल होनी है. Apart from that, you can literally carry on, you know, it's only a matter of giving 2 weeks of your life. That's all it takes. Once you are done with the second part, जो आखिरी के 2 parts है, the freezing part of it and the storage part of it, ये लैब में होता है, उसमें आपका रोल नहीं है. सो इमीडिएटली आफ्टर सीइंग द मेच्योरिटी वी विल फ्रीज दोज एग्स और आपको वो नंबर्स बताए जाएंगे कि इतने एग्स मिले हैं टोटल और इसमें से मेच्योर एग्स इतने हैं, राइट. एंड देन द स्टोरेज हैपन्स. नाउ दैट स्टोरेज अगेन कि आपके ऊपर है आपको कितना साल. सो देयर आर एनुअल स्टोरेज चार्जेस फॉर दैट. So then you have to keep as per whatever your future plans are. वो आपके ऊपर है कि आप कितने साल तक स्टोर करोगे उनको. तो उतने साल तक वो आपको स्टोरेज रहता रहेगा. एंड देन वंस यू मे बी यूज इट और यू डोंट वांट इट, व्हाट इफ यू conceive naturally, you know, and you don't need your eggs, then you can anytime discard those eggs. ऐसा है. So the last part again is up to your preference कि आपको कितने साल तक चाहिए, कब तक चाहिए, ऐसा है. So basically only 4 steps are there and it takes maximum 2 weeks of your life. So it's not something that उसमें भी आपको रोज हॉस्पिटल नहीं आना रहता है. Just 3 to 4 visits for scans when we monitor the stimulation part of it. डोज एडजस्टमेंट्स होते हैं करने के लिए. एंड 1 day for egg collection. So 3 to 4 visits and 1 day for scans and 1 day for your egg collection. That's all. That's all you need. You know, 5 days of your for the hormonal injections. Yeah. Like how many days you have to take the injection? 8 to 10 days at least. हाँ, तो वो आप हॉस्पिटल जाकर. नाउ आई हैव मेनी पेशेंट्स, वो तो आके करके काम पे जाते हैं. सो इट्स नॉट समथिंग कि ओ माय गॉड छुट्टी ले लो. या यू जस्ट हैव टू टेक इंजेक्शंस एंड लीव. यू डोंट हैव टू वेट ऐसे कि दिन भर का दिन जा रहा है. तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स पीपल डोंट इवन नो उनके कॉलीग्स का IVF चल रहा है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इट्स कि इतना सिंपल हो गया है, इतना लोग आते हैं करके जाते हैं. एग कलेक्शन वाले दिन एक दिन छुट्टी ले लेते हैं, दूसरे दिन भी चले जाते हैं. इनफैक्ट समटाइम्स वी टेल पेशेंट्स कि भाई देख लो एज पर योर कंफर्ट, इफ़ यू आर कंफर्टेबल टू. सो मेनी अ टाइम्स पीपल डोंट इवन रियलाइज कि किसी का कुछ चल रहा है ट्रीटमेंट ऐसा. सो इतना सीमलेस हो गया है सब कुछ. एंड ये जो हार्मोन इंजेक्शंस है ये बेसिकली बटक्स पे लगते हैं, बैक पे या तो पैर पे हम कई बार देते हैं. तो ये भी कंफर्टेबल होता है. इन माई ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस आई हैव नॉट सीन एनी पेशेंट स्टॉप द ट्रीटमेंट क्योंकि मुझे इंजेक्शंस का तकलीफ हो रहा है. ऐसा नहीं होता है, यू नो. सो वेरी प्रिटी माइल्ड साइड इफ़ेक्ट्स बोलूँगी मैं, जो बेरेबल होते हैं, मेडिसिन के साथ हो जाते हैं. थोड़ा ब्लोटिंग, वही जो नेचुरल साइकिल में अगर किसी की टेंडेंसी होती है तो उनको थोड़ा ज़्यादा लगता है. देयर आर अ लॉट ऑफ एग्स यू माइट फील एट द लेटर स्टेजेस बिकॉज अगर बहुत नंबर्स है, PCOS जैसा पिक्चर है, सो यू माइट फील कि अरे थोड़ा हैवी लग रहा है, हार्मोन ज़्यादा हो रहे हैं बॉडी में. तो हार्मोनल मूड स्विंग्स बोल दो या स्टमक फुलनेस बोल दो, डिस्टेंशन बोल दो, यू माइट फील, बट ओनली एट द लेटर स्टेजेस व्हेन यू आर नियरिंग द एग कलेक्शन. But otherwise, almost 98-99% patients tolerate these injections very well. So, मतलब, yeah, it's pretty Pretty easy. Easy these days, yeah. Good. And are there any emotional side effects for the women who undergo this? Well, emotional मैं नहीं बोलूँगी. In fact, at the start of the treatment, you should first आपको वो काउंसलिंग बहुत ज़रूरी होती है. डॉक्टर से समझना हर चीज़, यू नो, एक फैड की तरह फॉलो नहीं करना है कि चलो दुनिया कर रही है तो हम भी कर रहे हैं. इट्स नॉट लाइक दैट. आई थिंक यू शुड अंडरस्टैंड फॉर योर सेल्फ वाई यू वॉन्ट टू डू इट. यू नीड टू एड्रेस दैट थिंग कि मुझे करना है क्या. फाइन, वेदर आई वॉन्ट टू एम्ब्रेस मदरहुड इन फ्यूचर, देन यू डू दैट. तो उस टाइम पर से ऑफकोर्स यू नीड सपोर्ट फ्रॉम, यू नीड द पेरेंट्स
नाउ पार्टनर की तो बात नहीं चल रही है यहाँ पर, बट पेरेंट्स हो, ये हो, तो मैनी अ टाइम्स ना आई हैव हैड पेशेंट्स जो यू नो नाउ डेज एवरीवन इज बट ऑल गर्ल्स आर प्रीटी इंडिपेंडेंट ना, खुद के पैसे से करवा रहे सब कुछ, they don't need parents की even money for that matter, but then there is that emotional support that eventually सब ready रहता है, but then they'll be like मैडम एक बार प्लीज मम्मी पापा से बात कर लो ना थोड़ा, it will make my work easier. So I think यहाँ पर ही अवेयरनेस की बात आती है, you know. तो ऐसा हो जाता है, like literally they arrange their finances, everything is ready and they'll come, मैंने छुट्टी ले लिया है, I am going to work on so and so days, everything is set, but just my parents, because parents का generation I wouldn't say that they are wrong, उस टाइम पे ये चीज़ें नहीं थी, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग हमें करवानी है उसमें. वी कांट ब्लेम देम कि अरे आप क्यों नहीं चल रहे हो टाइम के साथ साथ. इनफैक्ट जो अभी हमारे एज ग्रुप में लोग हैं उनको भी IVF अननेचुरल लगता है या एग फ्रीजिंग अननेसेसरी लगता है. सो जब हमारे एज ग्रुप में ही लोगों को ऐसे लगता है, सो इट्स वेरी ऑब्वियस फॉर देम टू अंडरस्टैंड. तो एक सपोर्ट होना अगर है तो उस बारे में बात करना. सो ऑफकोर्स आई ऑलवेज एनकरेज देम कि लेकर आओ, हम बात करेंगे. और आपके बात करने से और एक डॉक्टर के बात करने से बहुत फ़र्क पड़ता है. एंड एट द एंड ऑफ द डिस्कशन ऑलमोस्ट ऑल द टाइम द पेरेंट्स हैव बीन यू नो कि हाँ कन्विंस हो चुके हैं, एंड देव सेड दैट हाँ हमको थोड़े से लग रहे थे लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, एंड ये सब तो हमने सुना भी नहीं है एग फ्रीजिंग के बारे में एंड ऑल दैट, बट आप जो बोल रहे हो उसमें थोड़ा समझ, लाइक वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड. एंड वो जो होता है ना, वो इमोशनली एक डॉटर के लिए मे बी टू हैव दैट सपोर्ट दैट ओके आई हैव दैट इमोशनल, माई पेरेंट्स आर willingly there to support me, so that makes a lot of difference. She is very stress free and all, you know. तो पर से आई थिंक लोग जितना जानेंगे उतना इसको नॉर्मलाइज करेंगे, उसके बारे में बात करना नॉर्मलाइज करेंगे. तो एज सच ट्रीटमेंट रिलेटेड कोई साइड इफ़ेक्ट्स या इमोशनल वो नहीं रहते हैं, जो मैंने माइल्ड बताए थोड़े बहुत मूड चेंजेस, बट इतना नहीं. इट्स वेरी रेगुलर या. सो इमोशनली बहुत मैटर करता है. व्हेन यू नो दैट यू हैव अ बैकअप फ्रॉम योर फैमिली, सो यू फील रिलैक्स्ड. कई बार लोग अपनी सिबलिंग्स को लेकर आते, फ्रेंड्स को लेकर आते, so it's beautiful to see that. So I think you should have that support, so it makes easier for the person who is doing it, because she is definitely making a strong decision for herself. तो हमें उनको empower करना है. और कैसे empower करेंगे? By accepting her choices and being there for her. So I think when more and more people know about it, they'll normalize helping and you know उनका एक सपोर्ट करना. तो उसके लिए शी इज़ वेरी हैप्पी ड्यूरिंग दोज ट्रीटमेंट टाइम्स. आई फील ऐसा है, सपोर्ट इज़ इम्पॉर्टेंट फिर भी. So during this, whenever the treatment is happening, this initial 10-15 days when the injections are being injected and scans are done, so does lifestyle, diet changes, exercise help or matter? Okay, so I think that's a good question. Now see, कैसा है ना, I'll tell you my initial days when I was studying in MBBS. तब हमें मतलब जितना पता था तब बोलते थे अरे भाई 40 के बाद सबको IVF लगता है, बच्चे नहीं होते. मैं जब PG में आ गई तब वो हो गया कि 35 हैज़ बिकम द कट ऑफ, कि भाई 35 के बाद है अब तो पक्का डिफ़िकल्टी हो जाएगी. नाउ व्हेन आई एम प्रैक्टिसिंग एज एन IVF consultant, it's very scary because the trend at which the fertility decline, मतलब the speed at which the fertility decline is happening, it's very scary. तो अब तो मैं 30 के बाद ही you know I have seen these cases. In fact at 25, 26, 27 also I have seen that the egg quality is so bad, you know, जो एक एक्सपेक्टेड होता है कि 30 के बाद हो, 35 के बाद हो, तो ये आजकल पहले भी दिख जाता है. तो इस वजह से जो क्वालिटी की बात है, लाइफस्टाइल चेंजेस, ये क्यों होता है? समटाइम्स इट्स वेरी डिफिकल्ट व्हेन पेशेंट्स टेल कि अब हमारे साथ क्या हुआ, हम तो उतने एज्ड भी नहीं हैं. तो दिस इज़ ऑल जेनेटिकली लिंक्ड हो गया. आपके लाइफस्टाइल इन जनरल, आजकल का सबका जो लाइफस्टाइल है, आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर ईटिंग अनहेल्दी और यू आर नॉट एक्सरसाइजिंग, ये सब की बात नहीं कर रही हूँ. आई एम सेइंग द एयर, the pollution around us, the food that we eat, everything is contaminated. No, it's not as good as fresh as before. So now these things, and of course work stress बोलो, lifestyle बोलो, हम कम सोते हैं, overall तो ये impact कर ही रहा है. इसीलिए ये decline दोनों में हो रहा है, men also and women also, this decline is seen. तो अब ये egg freezing करना है, इसके लिए
अलग से आप मैजिकली कुछ करोगे तो वो नहीं होने वाला है, बिकॉज वॉट एवर डैमेज हैज़ हैपेंड ऑल थ्रू द ईयर्स, और उसमें आपका रोल भी क्या है, यू कांट स्टॉप ब्रीथिंग द एयर, राइट? सो आई वुड सजेस्ट कि हेल्दी रहो, दैट्स ऑल आई टेल पेशेंट्स ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। तो कुछ पॉइंट ही नहीं है कुछ अलग से करने का, बिकॉज ये चेंजेस ग्रेजुअली इतने सालों के होते हैं ना, क्वालिटी पे जो इम्पैक्ट कर रहा है ये वैसा है। तो जस्ट बी हेल्दी एंड ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट स्ट्रेस वगैरह नहीं लेना है, इसलिए मैं सपोर्ट को इतना इंपॉर्टेंस देती हूँ, बिकॉज देन माई रिस्पॉन्स टू स्टिम्युलेशन इज नॉट गुड। इफ यू आर वेरी मच एंशियस स्ट्रेस्ड तो द फॉलिकल्स माइट नॉट ग्रो वेल, तो मेरी जो एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स है उससे थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है। इसलिए थोड़ा काम रहने का रूटीन आप सब कर सकते हो, कहीं पर भी छुट्टी लेके घर पे नहीं बैठने बोलते हैं हम, इवन आफ्टर एग कलेक्शन। सो स्टे एज मच एज यू कैन इन योर रूटीन एंड हेल्दी लाइफस्टाइल चॉइसेस अदरवाइज ऑल्सो यू शुड हैव, उसमें कुछ अलग से नहीं करना है। एंड ऑफ कोर्स इफ समवन इज एन एक्टिव स्मोकर, अल्कोहल ले रहे कंजम्पशन, तो थोड़ा सा अगर प्लान चल रहा है तो प्रॉबेबली यू नो start reducing all those things, you know. So since we're talking about egg freezing and embryo freezing, so as you advised, embryo freezing is usually done by the couples where you're sure about the partner. So that time is sperm freezing also possible? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं. Now see, unfortunately call it discrepancy, but सीमेन या स्पर्म क्वालिटी का एज से वो ज़्यादा कनेक्शन नहीं रहता है कि एज रिलेटेड डिक्लाइन होता है, एज रिलेटेड आई एम सेइंग. बट ऑफ कोर्स लाइफस्टाइल चॉइसेस की बात करें कि इफ समवन इज़ अ क्रॉनिक स्मोकर है या टोबैको इनटेक है या यू नो अल्कोहल इनटेक है, सो ये लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से हो सकता है. तो इसीलिए ज़रूरत नहीं पड़ती है पर से, बिकॉज वी रियली डोंट नीड, बहुत मिलियन स्पर्म्स रहते हैं और हमें सब नहीं चाहिए, हमें उसमें से हेल्दी स्पर्म्स ही थोड़े बहुत ही लगते हैं जितने आपके एग्स होते हैं बेसिकली. तो आइडियली ज़रूरत नहीं है. बट मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप पूछे तो किसी की अगर किसी को कैंसर है, इवन मैन इफ दे हैव सम सॉर्ट ऑफ कैंसर and they want to start taking radiation बोलो या chemotherapy बोलो, again those drugs are going to affect the semen, the sperm production and everything. तो तब हम बोलेंगे उनको, तब वो करके जाते हैं. अगर किसी को कोई सर्जरी प्लान करनी है for some reason, you know, तो तब हम बोलते हैं कि you know you can freeze your this thing. बस वो एज रिलेटेड जैसे ना डिक्लाइन करी अब, तो उस पर वैसे नहीं होता है. So ideally only for medical reasons we do tell them. And one more important thing is sometimes we have lot of partners who are in a long distance marriage, you know, कि husband work related कहीं और है, तो ऐसे cases में भी कि you know maybe somewhere in ship बोलो या maybe out of country बोलो या army, many ऐसे भी होता है कि they are not staying together. तो ऐसे केसेस में जब हम फर्टिलिटी प्लान करनी है यहाँ पर, सो वी डू एडवाइस फ्रीजिंग द सीमेन सैम्पल. तो दे कैन फ्रीज एंड गो एंड देन हम ट्राई करते हैं. तब IVF ही नहीं बट एक सिंपल IUI प्रोसीजर होती है वेर वी इंसेमिनेट द सीमेन सैम्पल. तो ऐसे केसेस में हम कर सकते हैं. देन एक्टिव इन्फेक्शंस, HIV या कुछ भी है, तो उस केसेस ऑल्सो यू कुड यू नो वो प्रोलॉन्ग एक्सपोजर का इफ़ेक्ट पड़ेगा तो आप तब भी कर सकते हो. तो आई थिंक दीज आर ऑल मेडिकल एंड मे बी या रीजंस टू स्टोर. बट रूटीनली जैसे हम वुमेन की बात कर रहे हैं, गर्ल्स दैट, तो ऐसा ज़रूरत नहीं है कि अरे सीमेन नंबर, हाँ एज रिलेटेड डिक्लाइन नहीं होगा कि कम हो जाएगा. It's unfair, but that's how it is. That's how, yeah, that's how. Yeah. So, just a question. Suppose there is a lady has a first baby. Okay. And she is not yet, naturally she is having a first baby. And then after having first baby, can she still have the option of freezing the eggs in case if she wants to use it for her second baby? Yeah. So again, ये बहुत हो रहा है आजकल कि I have a lot of couples जिनके पहले बेबीज़ हो चुके हैं एंड नाउ दे आर ट्राइंग फॉर मे बी सेकेंड और थर्ड इशू या जो भी है. तो वो आते हैं हमारे पास एंड देन दे टेल, एंड व्हेन आई टेल देम दैट ओके वी माइट हैव टू choose IVF as the way forward,
तब उनमें बहुत एक डिनायल एस्पेक्ट होता है कि अरे ऐसे कैसे, मेरा तो हुआ है पहले तो हमारा नेचुरल हुआ है ऐसे, तब तो कोई एक दवाई नहीं खाई थी डॉक्टर ऐसा, दे आर वेरी लाइक इन कंप्लीट डिनायल। तो आई टेल देम अ सिंपल थिंग कि आप अभी 35 के हो, आपके तब की जो प्रेगनेंसी थी तब 25 की हुई थी, सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। आपके तब के एग्स और आपके एग्स में क्वालिटी की बात करो या एवरीथिंग, ऑफ कोर्स इट्स नॉट एज गुड। तो ये फॉल हो रहा है, नंबर्स गिर रहे हैं, क्वालिटी कम हो रही है, इस वजह से आपको अभी लग रहा है, ऑफ कोर्स पहले नहीं लगा था, क्यों लगेगा, बट अब ज़रूरत पड़ रही है इसलिए बात कर रहे हैं हम। तो बहुत बार ऐसे पेशेंट्स हैं जो इनफैक्ट मैनी अ कपल्स लाइक दे आर ट्राइंग, तो ऐसे में हम वापस एम्ब्रियो फ्रीजिंग की बात करेंगे। हाँ, राइट। वी विल डू द एग कलेक्शन and we will take the semen and we will try to do the embryo freezing करके हम रखेंगे, because already उनका तो second baby के लिए option है, तब हम embryo freeze करके IVF के रास्ते आगे जाएंगे। So I think ये भी एक common चीज़ हो रही है जो इनफैक्ट ऐसे भी हुआ है many a times. It's very sad but people have had one baby, 2 babies, you know, and they are happy. Family planning operation तक हो जाता है, and eventually baby illness की वजह से something, you know, so that also we have patients now, they've come now, they have done family planning operation and maybe the baby is not anymore. So you feel very bad, but with the science due to IVF I am able to give them another baby. So I think that is the beauty of IVF, like being able to do that for a couple, you know, give them a second chance. तो ये भी हमने किया है, इनफैक्ट हुए हैं बेबीज बहुत अच्छे। तो ऐसे केसेस में तो अच्छा लगता है, यू नो, दैट ऐसे साइंस थैंक्स टू द टेक्नोलॉजी दैट आज के टाइम में हम ये कर पा रहे हैं उनको, जो नेचुरली शायद नहीं हो पाता था कि अभी 40-45 इयर्स के हो गए हैं तो अभी कैसे होगा। तो वो एक अच्छी चीज़ है, आई थिंक। That's really nice. Very nice. So, are there any misconceptions about egg freezing you would like to address? A lot actually, very much actually. तो basically IVF in general, any assisted reproductive techniques that we have, सबके बारे में ढेर सारे भर के misconceptions है, and it's not just the illiterate class I would say जिनको शायद even the literate ones, जो एक्चुअली देर आर पीपल हु आर वेरी एजुकेटेड, गुड पोस्ट, उनको भी चीज़ें नहीं पता रहती है या वो ऐसे मिसकंसेप्शंस बहुत इजीली मान लेते हैं। द मोस्ट कॉमन इज इट्स वेरी अननेचुरल। सो आई डोंट फील ये नेचुरल अननेचुरल क्या है, हम कोई बना नहीं रहे हैं एग्स यहाँ पे, आई एम नॉट आर्टिफिशियली डिज़ाइनिंग दी एग्स, आप ही के एग्स ले रहे हैं, आप ही के स्पर्म्स ले रहे हैं, और जो एम्ब्रियो बन रहा है वो आप ही का, सो हाउ कैन इट बी अननेचुरल? दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स। एंड सेकेंड इज़ कि फ्रीजिंग ये वाले अच्छे एग्स नहीं होते क्योंकि उसको फ्रीजिंग किया है। तो अभी इतने स्टडीज़ है ना, एनी पेपर यू ओपन, यू नो, मेडिकल पेपर्स, एवरीथिंग इज़ वेरी स्टैंडर्डाइज्ड, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। हाँ, 30-40 साल पहले आपके कंसर्न्स होना वैलिड होते हैं, जब नया ट्रीटमेंट IVF आया है तब लोगों को नहीं पता है, बट सिंस देन a lot of new things have come and every single day newer and newer technologies keep coming, you know, so only to increase the success rate and all. So I think overall, you know, ये जो misconceptions है with regards to natural eggs, natural as in natural pregnancy से ये वाले अलग होते, ये तो बिल्कुल नहीं है। They are yours, it's only that we get to see आपकी जैसी। तो increased risk नहीं है for genetic abnormalities बोलो या overall for any any kind। फिर एक भी लगता है, बहुत लोगों को लगता है मिसकैरेज ज़्यादा होते हैं, ट्विन्स ज़्यादा होते हैं, ये ज़्यादा, ऐसा नहीं होता है। सो जो आपकी इनेट कैपेसिटी है, अगर वो होना है, वो द रिस्क आर सेम एज ए नेचुरल कंसेप्शन और IVF में, तो अलग से कुछ इंक्रीज रिस्क ऑफ एनी अदर थिंग्स इज़ नॉट, इट्स एक्चुअली द सेम जो बॉडी में होगा, यहाँ पर बस हम देख पा रहे हैं लैब में क्या चल रहा है। तो दैट इज़ वन मिसकंसेप्शन। फिर कईयों को ऐसे लगता है, अरे आप अभी मेरे एग्स निकाल लोगे तो मेरा फ्यूचर में कैसे कंसीव होगी। तो
you need to understand कि हम आपके सारे eggs नहीं ले रहे हैं. We have lot of thousands of eggs in the body. उस साइकिल में जो बन रहे हैं हम उसी को हार्वेस्ट कर रहे हैं. अगर वो नहीं भी किया तो नेचुरली भी तो वो जाने ही वाले, बिकॉज द डीजेनरेशन इज हैपनिंग. जब मिलियंस के साथ पैदा हो रहे हो, अभी थाउजेंड्स में आ गए हैं, तो ये नेचुरल भी बॉडी अगर नहीं यूज़ करेंगे तो वो भी अपने आप ही बॉडी उसको डिजेनरेट करेगा, राइट. सो ये बहुतों को लगता है कि एक बार मैंने फ्रीज करा लिया तो मेरे एग्स फिर बनेंगे ही नहीं. तो ये भी बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है. बाकी सेफ्टी को लेके थोड़े बहुत कंसर्न्स है. बहुत दर्द होता है, बहुत इंजेक्शंस लगते हैं. तो आई थिंक आई हैव सीन ऑल माई पेशेंट्स एक्सट्रीमली कंफर्टेबल, एंड मैंने कभी किसी को ऐसे नहीं बोला है, मतलब देखा है दैट पेशेंट इज़ कंप्लेनिंग कि मैडम बहुत पेन, हाँ बहुत है, ये क्या है, मुझे तकलीफ़ हो रहा है, इंजेक्शन का भी बंद कर दो आप. ऐसा बिल्कुल नहीं है. सो हाँ, ऑफ कोर्स यू नीड दैट डेडिकेशन कि वो 8 to 10 डेज आपको आना पड़ेगा, उतना करना पड़ेगा. बट आई थिंक द रिजल्ट इन द एंड इट्स वर्थ दैट एफर्ट, वॉट एवर यू बीन टेकिंग. तो वो एक थोड़ा सा है कि इंजेक्शंस को लेके बड़े सारे मिसकंसेप्शंस है. लगता है कैंसर के रिस्क बढ़ाता है, तो ऐसा भी कुछ नहीं है. लॉट ऑफ दीज मिसकंसेप्शंस, ओवेरियन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, तो कोई इंक्रीज रिस्क नहीं होती है. ऑल दीज ड्रग्स आर pretty much studied, and they are the same drugs जो आपके बॉडी में नेचुरली होते हैं. ये सेम हॉर्मोन्स का हम लोग एक वर्जन देते हैं बॉडी में. तो ऑफ कोर्स ये इसको लेकर थोड़ा सा कंसर्न्स है. तो आई थिंक एंड नाउअडेज जितना जितना टाइम जा रहा है ना, हमारे स्टिम्युलेशन प्रोटोकॉल्स चेंज हो रहे हैं. तो पहले जो अग्रेसिवली देना पड़ता था, लॉन्गर ड्यूरेशन इंजेक्शंस, नाउ वी हैव कम टू शॉर्टर प्रोटोकॉल्स. Now we are embracing milder stimulations. तो it's becoming more, I think, patient compliance, better हो रहा है, patient के लिए comfortable हो रहा है. तो even in my setup, I don't engage, like I don't let my patients take कि बस दिन भर दवाई ले रहे. तो एक 10 साल पहले होता है, इनफैक्ट अभी भी काफ़ी सेंटर्स में होता है. बट मिनिमल काम, जिससे आपका काम हो, आप कंफर्टेबल हो, तो पेशेंट कॉम्प्लायंस इज द की, दैट इज़ हैपनिंग विद. तो आजकल ये काफ़ी सिंपलर होते जा रहा है, मैनेजेबल होते जा रहा है विथ वर्क. सो 90-95% ऑफ देम आर वर्किंग वुमेन. सो इनके लिए बिल्कुल आसान हो गया है चीज़ें. इवन दे आर मैरिड, दे आर सिंगल, इट्स गोइंग थ्रू IVF इज़ बिकम वेरी ईजियर, आई थिंक. तो आई थिंक उसका फ़ायदा उठाना चाहिए लोगों ने. दैट डजंट मीन सबने करना चाहिए, वो तो बिल्कुल नहीं है. बट जिनको ज़रूरत है वो लोग भी कई बार बहुत डिले कर देते हैं, 10 डॉक्टर के पास घूमेंगे. बट ये समझना है कि आपका प्रोग्नोसिस कम ही होते जाएगा अगर आपने टाइम को वैल्यू नहीं किया. तो सक्सेस रेट के नहीं, आप तो ये बोल रहे हो जैसे शॉपिंग करते हैं, विंडो शॉपिंग, आपका सक्सेस रेट इतना, आपका उतना है. सो दे डू. सो आई ऑलवेज टेल माई पेशेंट्स कि अगर ज़रूरत है तो डिले नहीं करना चाहिए. दैट इज़ योर मैक्सिमम चांस ऑफ सक्सेस रेट rather. And of course that is not the first thing I advise. I have had many patients who conceive naturally also. तो patient selection is very important. तो वो भी बहुत गलत है कि सबको ही IVF बोल दो. इनफैक्ट ये भी नहीं होना चाहिए. So there should be that fine balance, And I think ये सारे कॉमन मिथ्स है बेसिकली. इंजेक्शंस को लेके, ड्रग्स, प्रोसीजर्स को लेके. हाँ, रोज़ हॉस्पिटल आना पड़ता है, ये लगता है. तो इंजेक्शंस लेने अगर आप खुद ले सकते हो, घर पे खुद ले लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो उतना तो कर सकते हैं. समटाइम्स माय पेशेंट्स आर स्टेइंग एल्सवेयर आल्सो, दे आर नॉट इवन फ्रॉम मुंबई, तो लोकल करते हैं. बट मैं उनको स्कैन के लिए तो डेफिनेटली बुलाती हूँ, क्योंकि मुझे जो 3-4 बार स्कैन होता है उससे मेरे डोज डिसाइड होते हैं. तो दैट इज़ गोइंग टू गिव मी द सक्सेस रेट. तो वो उसके लिए मैं थोड़ा बोल देती हूँ. फिर बेड रेस्ट की ज़रूरत, बेड रेस्ट नहीं रहता है. इवन आफ्टर दैट पीपल से कि फिर बेड पर ही प्रेगनेंसी जो होती है IVF की, वो बेड रेस्ट ही करनी पड़ती है. मतलब ये सारे पूछते हैं लोग मुझे. यू माइट, मतलब ऐसा होता है पीपल का आस्क, मैम अभी 9 महीना बेड पर ही रहना. तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. इवन व्हेन पीपल फील IVF किया तो ट्विन्स हो जाएंगे, ट्रिपलेट्स हो जाएंगे. आई थिंक ऑल दीज सेलिब्रिटी का बहुत कुछ इन्फ्लुएंस हुआ है. तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. आप जितने एम्ब्रियोज डालोगे उतना फर्टिलाइजेशन होगा. तो अभी हम सिंगल पर ही जाते हैं. वी एडवाइस सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर. तो उसमें हमारे रिस्क कम हो जाते हैं ट्विन्स और मल्टीपल ट्रांसफर. The chances of implantation are there good. सी अब इनिशियली हम
अर्लियर स्टेजेस पे करते थे, डे 3 स्टेज पे हम ट्रांसफ़र करते थे, बट अभी आजकल इतना हुआ है, सब कुछ इज़ गेटिंग बेटर कि आज हम एक एडवांस्ड एम्ब्रियो दे पा रहे हैं, वी गो टिल द ब्लास्टोसिस स्टेज, यू नो। तो वो वाले जो एम्ब्रियोज हैं उनका बेस्ट दे आर, यू नो, वहाँ तक सस्टेन किया है, बाहर तो अंदर तो चांसेस डेफिनेटली बढ़ जाते हैं। तो जब हम पहले वाले स्टेज के देते हैं तब हम थोड़ा ज़्यादा 2-3 दे देते थे, तो उसमें से चलो मैक्सिमम हो गए। तो बट नाउ दैट विथ इफ यू आर गिविंग अ डे 5 एम्ब्रियो विच इज़ द मोस्ट एडवांस स्टेज, तो सिंगल इज़ रिकमेंडेड, यू नो, अनलेस ऑफ कोर्स मल्टीपल अटेम्प्ट्स हुए हो, वो सारी चीज़ें हैं, सो दैट्स अ वेरी डिफरेंट कैटेगरी। बट यूजुअली इन ऑल वी हैव दैट सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र पॉलिसी, यू नो। एंड तो ये सारे बेसिक आई थिंक मिसकंसेप्शंस है। बाकी कॉस्ट को लेके आई डोंट अंडरस्टैंड पीपल रियलाइज़ कि जो हमारे मशीन्स है लैब के बोलो या सो ऑल दोज नीड टू बी एट अ सर्टन लेवल, यू नो, क्योंकि आप बॉडी लाइक कंडीशंस बाहर कर रहे हो। तो आज हमारी लैब्स में है, वी हैव ए ग्रेड इंस्ट्रूमेंट्स देयर, एवरीथिंग, यू नो, इम्पोर्टेड, ऑल बेस्ट क्वालिटी। व्हेन आई इन्वेस्ट इन ऑल दैट इज़ व्हेन आई विल बी एबल टू गिव यू अ गुड रिजल्ट। तो प्राइजेस उसके होते हैं, सो इंजेक्शंस आप दे रहे हो उसके होते हैं, सो इससे सबसे कॉस्ट को भी थोड़ा इनहिबिशंस है। बट डेफिनेटली आई थिंक जैसे जैसे टाइम जा रहा है वी आर ट्राइंग टू कट डाउन, यू नो, विदाउट अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट। तो जो बहुत पहले एक्सपेंसिव था, आई थिंक अभी तो कर पा रहे हैं लोग, यू नो, द फाइनेंस पार्ट ऑफ इट। सो आई थिंक वो फाइनेंस को भी लेके कई बार लोग को लगता है इतना क्या है करना, तो आई थिंक दे शुड कम टू आवर लैब्स एंड सी व्हाट इज हैपनिंग। दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लैब में एंट्री नहीं रहती है, इट्स वेरी इट्स अ पायस प्लेस। वहाँ पे इवन एज डॉक्टर्स वी हैव लिमिटेड रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। आई विल ऑल्सो नॉट गो, ओनली माई एम्ब्रोलॉजिस्ट विल गो। इट्स दैट दिस, तभी आपको एयर क्वालिटी एंड एवरीथिंग ना, दे हैव लॉट ऑफ मार्कर्स फॉर ऑल दैट। तो ऐसा है। सो आई थिंक दीज आर द मोस्ट कॉमन मिसकंसेप्शंस करके, बट ओवरऑल आई फील थिंग्स हैव बिकम अफोर्डेबल टू पब्लिक एटलीस्ट थोड़ा एज कम्पेयर टू प्रीवियस। इवन आई हैव पीपल जो रिक्शा वाले हैं, वेजिटेबल वेंडर्स है, जिन्होंने हमने उनको बेबी IVF से करके दिया है। सो यू कुड इमेजिन कि फिर भी कर हो पाया है। सो या आई थिंक covered all misconceptions. Yeah, cool. So any advice you would like to give to the women who are planning or, you know, thinking about egg freezing? हाँ, so एक चीज़ मुझे बहुत पर्सनली लगती है कि जैसे हमारा करिकुलम में एक होता है कि पहले मेरे टाइम पे तो सेक्स एजुकेशन भी हमें एक ही लेक्चर होता था, वो भी आधा अधूरा कुछ बताते थे। तो आई थिंक कॉलेजेस में इसके बारे में बहुत अवेयरनेस होना चाहिए, बिकॉज द टाइम्स दैट वी आर लिविंग इन, जहाँ पर करियर को हम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, जॉब्स को दे रहे हैं, हायर एजुकेशन को दे रहे हैं। सो आई थिंक ये ऑप्शन अवेलेबल है, ये लोगों को पता चलना चाहिए। आज के टाइम में बाय द टाइम पीपल रियलाइज, ऑल माई पेशेंट्स हु like done with me recently, they all 30 cross, मतलब 30-32, क्योंकि अभी उन्हें पता चला है। and the only thing they tell me is ना कि डॉक्टर मुझे पहले पता होता ना मैं पहले कर लेती, but they are still doing it। ठीक है ना, जितना भी चांस हो। एक one of my patients even did 2 cycles because numbers कम आए थे when she did first। तो ये जब मैं सुनती हूँ तब मुझे बहुत strongly feel होता है कि ये अवेयरनेस होनी चाहिए सब में। एंड जब अवेयरनेस होगा तब सबको पता चलेगा कि ये ऑप्शन है, हम कर सकते हैं। सो माई एडवाइस टू एवरीवन इज दैट डोंट फॉलो व्हाट अदर्स आर सेइंग। आपको क्या चाहिए, दैट यू डिसाइड। मदरहुड शुड बी अ चॉइस। टू बी अ मदर, टू नॉट बी अ मदर शुड ऑल्सो बी अ चॉइस। जस्ट बिकॉज सोसाइटी इज टेलिंग यू अदरवाइज, ये ऐसा, यू नो, यू शुड नॉट मेक दीज रैश डिसीजंस कि सब कर रहे हैं हम भी कर रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। What you need is something you might, हाँ, confused हो तो फाइन, आगे हो सकता है बेबी, तो ऑफ कोर्स एक इंश्योरेंस की तरह आप यूज़ करके रख सकते हो। तो उसको समझना है कि मुझे करना है फ्यूचर में बेबी, देन डेफिनेटली इफ दैट थॉट इज़ वेरी क्लियर, देन आई फील यू शुड डू इट एज अर्ली एज पॉसिबल। जस्ट डू इट, नाइकी का टैगलाइन would say that don't waste your time, because
आपका सक्सेस रेट इन द एंड नंबर का ही खेल है, राइट? सो द अर्लियर यू डू द बेटर क्वालिटी, द बेटर एग्स यू विल गेट, गुड नंबर्स यू विल गेट. तो पहले तो यू हैव टू डिसाइड वेदर यू वांट टू डू इट और नो. ये ऑप्शन है और आसान है करना आजकल. देन रही बात फाइनेंस की, तो जो पहले से अब तक बहुत कम हो रहे प्राइजेस, आई थिंक इवेंचुअली और भी कम होने लगेंगे, यू नो, प्रॉबेबली. सो आई थिंक ऑप्शन है तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए. एंड कब करना, हाँ मुझे करना है, देखते हैं, ये बहुत ही गलत है. सो इफ़ यू आर वेरी सीरियस, आई वुड ऑलवेज से प्लीज़ यू नो फ्रीज योर एग्स एंड कीप, because that age of initiation is very important, that will predict the success rate. And even for that matter, शादी करके भी अगर आपको बेबी चाहिए, हाँ अभी नहीं चाहिए, अभी हमें 5 साल घूमना है, तो 5 साल बाद मत करो. 5 साल के बाद का 35 ईयर एम्ब्रियो एंड 30 का एम्ब्रियो, यू ओनली नो कौन सा बेटर परफॉर्म करेगा. राइट. सो ऑफकोर्स आई ऑलवेज से, एंड मैं चाहती भी हूँ कि सबने अपने टाइम पर करना चाहिए, बट इसका फ़ायदा उठाओ. वी हैव दैट फैसिलिटी, टेक्नोलॉजी, सो यू कैन फ्रीज दोज एंड जस्ट कीप इट, एम्ब्रियो बोलो और एग्स बोलो, एंड देन यूज इट एट अ लेटर स्टेज वेन एवर यू वांट. बट डूइंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यूजुअली वी प्रोक्रेस्टिनेट एंड देखते हैं ना, करते हैं ना, तो ऐसे में कुछ नहीं होने वाला. इफ़ यू आर वेरी सीरियस, तो पहले आपको रेट्रोस्पेक्टिवली सोचना है. थिंक एवरीथिंग, इंट्रोस्पेक्ट, थिंक व्हाट यू वांट, एंड देन गो अहेड एंड डू दैट डिसीजन. यू नो, इट्स ओनली गोइंग टू कॉस्ट यू 2 weeks ऑफ योर लाइफ. एंड देन होते हैं लोन ऑप्शंस होते हैं, बाकी बहुत सी चीज़ें होती है. यू कैन ऑफ कोर्स टेक हेल्प अगर वो भी है. हाँ, तो वो करना जो है ना, वो इनिशियल पॉइंट ही बहुतों का नहीं आ पाता. लाइक कि हाँ देख लेंगे ना, कर लेंगे ना, तो वो एटीट्यूड मुझे लगता है कि ओनली व्हेन दे नो कि क्या होने वाला है, तभी है ना. सो इट ऑल स्टार्ट्स विद अवेयरनेस. तो आई थिंक ये कॉलेजेस में तो कंपलसरी होना चाहिए. स्कूल्स आई थिंक विल बी टू यंगर फॉर देम टू अंडरस्टैंड, बट कॉलेजेस में ये ऑप्शंस होने चाहिए. इनफैक्ट when I go, I always recently started doing talks about these things. Okay. So more and more people are aware about these things, you know, and they take timely decisions, you know, like before 35 or before 30. वो वाली बात है. So besides that, वही है, आप सोचो, and if you feel, you should do it right away. That is my only advice to everyone who is even thinking of ever becoming a mother in future, I think. Yeah. So thank you, Dr. Namrata, for coming here and sharing such beautiful information about egg freezing. And I think, as you said, awareness is really important, and every girl, every woman should know about this option, because then she can make an informed decision about her life. So thank you so much for being here. My pleasure completely. And I'm glad I got a chance to do that, because I think it's the need of the hour. It's the need of the hour, truly. And जितना बात करेंगे उतना उस बारे में, you know, at least discussions start होंगे, and that will normalize everything with you. So I think, yeah, thank you for having me here.